Okay, so today we'll cover the current affairs of 18th January. ठीक है? So these are the topics. We have some topics, variety topics. We have IR topics. We have one economy topic. We have fourth industrial revolution. So we have a ancient topic, Nataraj sculpture. So all these topics we have, which we'll be covering one by one. Okay, first news is bill tabled in US House to terminate Pakistan's status as major non-NATO ally. So it is a news. So the thing is here, this we have to connect it with IR topic, that is NATO, North Atlantic Treaty Organization. ठीक है? So first of all we need to cover what is NATO. NATO is an intergovernmental political and military alliance. So here the keyword is military alliance. Political alliance also, it's a political alliance, but it is also a military alliance. There are very few military alliances in the world. So it is one of them. So political, it promotes, why it is political? Because it promotes democratic values and enables members to consult and cooperate on defense and security related issues to solve problems, build trust, and in the long run prevent conflict. Like any kind of security issues happens in the world, so they promote democracy, democratic values to stop that conflict. If any conflict happens, no need to write everything. Military, this is more important. There is something called collective defense mechanism. NATO says we are a group. If someone attacks, if some outsider attacks one member of our group, we will attack. ठीक है? This is what it is committed to. First of all, peaceful resolution is there. If diplomatic efforts fail, if diplomacy बात करके अगर problem solve नहीं होता है, if it fails, it has the military power to undertake the crisis management of operations. These are carried out under the collective defense clause of NATO's founding treaty, that is the Washington Treaty. Article 5 of the Washington Treaty, or under a United Nations mandate, alone or in cooperation with other countries. It means this Washington Treaty में Article 5 में लिखा है, first of all, if any problem happens, try to solve it through diplomacy. If diplomatic efforts fail, then they can take the help of military. Clear? NATO. Fine. One more thing you have to remember, all decisions are taken by consensus. Remember, in prelims they may ask you the decisions are taken by majority. Simple majority or absolute majority, they may write that term in the exam, but it will be wrong statement. These are all taken by consensus. Everyone's consent is required. ठीक है? Okay. It is committed to the principle that an attack against one or several of its members is considered as an attack against all. I just told you. एक को अगर मारोगे, हम सब साथ मिलके आपको मारेंगे. ठीक है? Will attack you. This is the principle of collective defense. So the principle of collective defense, अगर terminology आएगा एग्जाम पे, this belongs to NATO. Principle of collective defense, and it is mentioned in the Washington Treaty, from where NATO was established. Got it? Okay. And this collective defense principles has been used or invoked only once. We all know when. In response to 9/11 terrorist attacks. अटैक किए थे ना, हम बोलते हैं कि यूएस अटैक किया था, राइट? अफगानिस्तान में किसको पकड़ने के लिए? हाँ? ओसामा बिन लादेन. सद्दाम हुसैन वो अलग है. ओसामा बिन लादेन हम बोलते हैं कि यूएस किया था, इट वाज एक्चुअली नेटो. ठीक है? क्लियर? ओके. So
So this is the working structure of NATO. No need to remember. Just two things you have to remember for prelims. The member countries, NATO delegations, you have to remember nuclear planning group and North Atlantic Council. These are the NATO delegations. Military representatives, it means there is a committee. There is a military committee. There will be a secretary general, some allied operations. But here you need to remember for prelims two things. NPG, Nuclear Planning Group, North Atlantic Council. ठीक है? We'll cover this. Now what is Nuclear Planning Group? NPG. Now what it does? They'll simply ask you this name, North Atlantic Council. Simply ask you, ये किसका है? 4 organization name they'll give. North Atlantic Council. First of all, we'll go study Nuclear Planning Group. It reviews and sets the alliance nuclear policy. NATO का जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो रिव्यू करेगा ये ग्रुप. न्यूक्लियर पॉलिसी रिव्यू करेगा. NPG. किसका न्यूक्लियर पॉलिसी? नेटो का न्यूक्लियर पॉलिसी. एलियंस लिखा है. ठीक है. While the North Atlantic Council is the ultimate authority within NATO, the NPG acts as the senior body on nuclear matters. So anything related to nuclear matter will be reviewed or will be set by NPG. But the bigger body is this, North Atlantic Council. Will cover this. So NPG will discuss specific policy issues associated with nuclear forces and wider issues such as nuclear arms, like arms control, anything related to armament or anything related to security. All these things will be taken care by NPG. These all are under NATO only, but this is a special group. Their name has been given. ठीक है? The body was founded in 1966 to provide a consultative process on nuclear doctrine within NATO. So NATO was found in 1948, but this body came in 1966 later, but within NATO. Now okay, North Atlantic Council. So it is a principal political decision making. Nuclear planning group related to security, okay, or nuclear. This is the political part, political decision making body within NATO, and is the ultimate authority at the head of a network of committees. Simply you have to remember political decision making body. That's it. Okay. Okay, next. Now, NATO was started in 1948 after the World War II. UN came. So after World War II, 2 power blocks came. One is US and one is USSR, that is today's Russia. Now Russia, now why? Because of 2 different ideology. US was more of capitalist and Russia was more of socialism or communism. All these things were there. Now both became 2 power blocks. Now in NATO, USSR was not a part. So in countering to NATO, this came, Warsaw Pact, as a counter to NATO in 1955. 1955. As a counter to NATO. It was started by Soviet Union, but it was ended. This pact ended in
1991 because Soviet Union was disintegrated and Russia came. So you should not expect question from Warsaw Pact because it is over. ठीक है? Okay, next news. Next news is a economy news. Next news is economy news. So yesterday there was a news. WPI inflation. WPI क्या है? Wholesale price. वो तो full form हो गया. मतलब क्या है? Okay, I'll tell you. First of all, the news is WPI inflation eases to 22-month low of 4.95% in December 2022. No need to remember this. ये होता रहता है. We have to cover here three things. What is WPI? What is wholesale price index? Inflation everyone knows, right? Increase in the level of prices. Fine. What is the CPI? That is consumer price index. These two indexes are there in India, used till now. Another index is also there, that is producer price index, but this index is yet not used. Niti Aayog is planning something. It is used by other countries but not yet used in India. Plan is going on. Producer price index. So all these three will cover today. ठीक है? So what is wholesale price index? It measures the changes. This index measures the changes in the prices of goods sold and traded in bulk by wholesale businesses to other business. कितना change हुआ है? ठीक है? An upward surge in the WPI. जब WPI बढ़ जाता है, when the WPI increases, it indicates inflationary pressure in the economy. Obviously WPI मतलब increase होगा तो inflation है, decrease होगा तो inflation नहीं. लेकिन WPI only talks about this price of goods sold and traded in bulk by wholesale business. सिर्फ wholesale business. ठीक है? Now these numbers are released by, remember, economic advisor in the Ministry of Commerce. WPI, Ministry of Commerce and Industry. Okay, Commerce and Industry. अब मुझे एक चीज बताओ. Change in prices, it means there has to be a base year, there has to be a current year. Anything you need to check the change means you need a previous year. तो इधर जो base year है that is 2011-2012 है base year. तो WPI is all current price. आज का कितना प्राइस है divided by base period price. 2011-12 में कितना था into 100. ठीक है? WPI. Now WPI जो कैलकुलेट होता है, कुछ कमोडिटीज होगा, राइट? कुछ तो कमोडिटीज होगा ना, उसी का प्राइसेस मतलब कोई एक कमोडिटीज होगा. तो व्हाट आर द कमोडिटीज? दैट विल कवर नाउ. सी दिस यू हैव टू रिमेंबर फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस. सो WPI, ये सब कंपोनेंट्स है WPI में. प्राइमरी प्रोडक्ट्स, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, इन्हीं का प्राइस यूज होता है. ठीक है? करंट प्राइस डिवाइडेड बाय बेस प्राइस, दैट इज 2011 एंड 12. ये नॉन फूड में आता है. ऑयल सीड्स, मिनरल्स एंड क्रूड पेट्रोलियम, कुकिंग ऑयल, फाइबर्स, कॉटन, जूट, ये सब आता है नॉन फूड में. फूड में ये सब आता है पैडी, व्हीट, वेजिटेबल्स, मिल्क, एग्स. These are all part of WPI में काउंट होता है. क्लियर? फ्यूल एंड पावर में केरोसिन, डीजल, LPG, इलेक्ट्रिसिटी, ऑल दिस कम्स इन फ्यूल एंड पावर. एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में केमिकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स आता है. नाउ द थिंग इज दीज ऑल आर पार्ट ऑफ आवर इन्फ्लेशन चैप्टर. इन्फ्लेशन चैप्टर, स्टैटिक इकोनॉमी.
So this is not current affairs I'm telling you, these are all static. So today when you go home, cover inflation chapter, do some 30-40 MCQs, 30 to 40 to 50 MCQs from inflation chapter. From where to do it from Vinay GB book, question bank, and plus wait for the inflation chapter to come in our weekly schedules, mentorship. Now there I'll be giving some more difficult and tricky questions on inflation. बस ठीक है. So economy में always remember, economy में you have to cover, note down the chapters which you need to cover for prelims, even for mains also. ज़्यादा prelims के लिए important है. Important chapters for eco prelims. Number 1, fiscal policy. Number 2, monetary policy. Number 3, inflation. Always question will be from these three, always, every year. Not 1 but 2 to 3 to 4 to 5 questions may come. 4. For example, this year prelims a question come inflation indexed bonds or wages, some question inflation index. So when you cover inflation, you have to cover everything from inflation. Okay, questions will be mix of basic plus advanced. It will be mostly concept oriented. Fourth chapter you have to cover banking. Banking is mostly in news, right? RBI is in news. We have covered a lot of banking stuff, if you remember. इधर सब आएगा, बैंकिंग आएगा, सॉरी RBI, सेक्शन 7, सेक्शन 8, RBI बोर्ड, RBI का बोर्ड रहता है 21 members, all these things you have to cover. Public sector banks. Now here, if you talk about mains, banking is important. Yes or no? RBI independence. ठीक है? Here you have to cover RBI surplus, dividend. We discussed, right? One mains question I have, it's already there in the channel. All these things you have to cover. RBI dividend is in news also. It was the lowest in the decade. ठीक है? All these things you have to cover. Don't go for SBI, HDFC, वो बैंक वो सब आता नहीं है. Max to max SBI कब आया था? 1955. नेशनलाइजेशन बैंक्स कब हुआ था? 1969. दैट्स इट. डोंट गो इन, वो सब बुक में लिखा है ना, वो सब क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम पे. ठीक है. नेक्स्ट गो फॉर टैक्सेशन. इन टैक्सेशन कवर द टैक्सेस, जीएसटी, कॉर्पोरेशन टैक्स. इधर क्या करोगे? थोड़ा इकोनॉमिक सर्वे के साथ लिंक करोगे. यू हैव टू कवर द इकोनॉमिक सर्वे. मोस्टली इकोनॉमिक सर्वे में एवरी ईयर का आता है कि इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, व्हिच इज मोर, व्हिच इज लेस, लास्ट 5 years ट्रेंड क्वेश्चंस आल्सो कम, ट्रेंड क्वेश्चंस. ऑल दीज थिंग्स you will not find in book. You have to cover it through economic survey. It will be coming in February. ठीक है? And when you cover taxation, cover the relevant ratios. Provisioning coverage ratio, debt to GDP ratio. So all the ratios. Provisioning coverage ratio, debt to GDP ratio, lot of ratios are there. 5 to 6 ratios are there. 3 to 4 ratios we have covered in our test series में मैंने questions लगाए थे. Remember? So like this you have to cover. Finally you have to cover appreciation, depreciation. 7th, BOP, balance of payment. क्या हुआ? Taxation I'll teach. Okay. So all these things you have to cover. Now questions will be framed. Now the thing is, if you think like, अच्छा appreciation depreciation मेरे से नहीं होता, ये छोड़ देता हूँ, बाकी ये पढ़ के जाता हूँ, नहीं हो पाएगा. Because the question in prelims will be from all related. That is called cause and effect questions.
कॉज इफेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है. दे विल आस्क यू फिस्कल पॉलिसी कनेक्टिविटी विथ एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन. एक्सपेंशन फिस्कल पॉलिसी होता है तो इसमें क्या इफेक्ट आएगा. सो ऑल दिस चैप्टर्स यू हैव टू स्टडी इन ए सिंगल, फॉर अ सिंगल क्वेश्चन कॉज एंड इफेक्ट क्वेश्चन आएगा. दीज चैप्टर्स इफ यू कवर, योर इकोनॉमी concept is done. Economic concepts are done. Next you can go for agriculture, that normal shares question, फिर GDP, NDP, वो सब चीज़ आ जाता है. But the more concept, वहाँ पे भी concept है, but the more concept is from here. I am talking about UPSC prelims. Now you have to minimum cover all these chapters, minimum 1000 MCQs from these chapters. If you do 1000 concept level MCQs, I can guarantee you आपका 15 क्वेश्चन में से 10-11 सही आएंगे, 12 सही आ सकते हैं, 12. It's not a small thing. What I'll do is, our test series I'll cover, plus I'll give you from economy, in particular to concept level economy, around 250 to 300 MCQs, plus our test with particular to these chapters around 100 to 200. If you count, around 200 will come. So 300 plus to 500, more 500 MCQs from WinAGB. So 1000 हो गया. टेक्निकल प्रिपरेशन 1000 MCQs. देखो प्रीलिम्स इज वेरी डिफिकल्ट. प्रीलिम्स जब तक क्लियर नहीं करोगे तुम्हारा मेंस का सपना हमेशा सपना रहेगा. मेंस प्रैक्टिस कहाँ पर करोगे? घर पे. मेंस कितने बार कोई पूछेगा तुमको, हाउ मेनी टाइम्स यू रोट मेंस? आई राइट डेली मेंस. व्हाट वेयर? इन माई होम. ठीक है, मेंस का जो सपना पूरा करना है, यू हैव टू क्लिक प्रीलिम्स. एंड प्रीलिम्स इज इंटेलिजेंस प्लस नॉलेज, दोनों है. इंटेलिजेंस प्लस नॉलेज एंड हाउ यू प्रिपेयर. And prelims can be only by, it can be cleared through, in big letters, practice of MCQs. Practice of MCQs. Okay, you got to know. So the whole 3 to 4 months, factual data also question will come 2 to 3. That can be covered very easily from current and affairs. Current affairs here and there वो हो जाता है. But these things कहाँ पे आएगा? करंट अफेयर में ज़्यादा नहीं होता ये सब चीज़. कॉज एंड इफेक्ट क्वेश्चन कहाँ से करंट अफेयर में आएगा? ठीक है, ओके. नाउ सी द डिफरेंस. नाउ आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगी. सी द डिफरेंस. CPI, WPI एंड PPI. दिस वी कवर्ड. होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, होलसेल लेवल पे होता है कितना इंक्रीज इन प्राइसेस. नाउ कम टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इट शोज द एवरेज चेंज इन प्राइसेस दैट आर ब्रॉट एंड सोल्ड एट द रिटेलर लेवल. ये होलसेल लेवल पे होता है, ये रिटेल लेवल पे होता है. द चेंज इन प्राइसेस, इट मेजर्स द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड बाय द रिटेलर टू द कंज्यूमर. होलसेल लेता है, रिटेलर को बेचता है, फिर वो कंज्यूमर को बेचता है. ठीक है, तो हियर रिटेलर एंड कंज्यूमर लेवल पे जो चेंज इन प्राइसेस होता है, दैट पार्ट इज like the index, that change in prices is brought by an indicator. That indicator name is CPI. ठीक है. सो यहां पे अगर पर्सपेक्टिव देखा जाए, CPI में क्या होता है? कंज्यूमर आ जाता है. होलसेल लेवल पे कंज्यूमर का कोई जगह नहीं है. यस और नो? वो तो होलसेल लेवल पे होता है. प्रोड्यूसर ने बनाया, होलसेल को पहली बार जो देता है, सो दैट लेवल पे होता है. दैट, सो इन WPI कंज्यूमर इज नॉट देयर. Here consumer is there because here retailer consumer को बेचता है. That increase in prices. So here it is, the perspective is more important because it measures the price change from the perspective of a consumer. तो अभी मुझे एक चीज बताओ, एक नॉर्मल बेसिक, you know WPI, you know CPI, which is more better indicator? CPI ना. आफ्टर इट इज अ कंज्यूमर, क्योंकि प्रोडक्ट किसके लिए बनाता है? इट इज फॉर द कंज्यूमर्स, इट्स फॉर अस.
तो क्लियर कट इन्फ्लेशन, ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, बट द मोर बेटर इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन कि इन्फ्लेशन सच में हुआ है या नहीं, इट कम्स फ्रॉम CPI. Now tell me one thing. Don't go to PPI. Wait. Now tell me one thing. इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाया है? तो कंट्रोल इन्फ्लेशन. हाई इन्फ्लेशन इज ऑल्सो नॉट गुड. लो इन्फ्लेशन इज ऑल्सो नॉट गुड. इट शुड बी in between. There is a range. What is that body name? Who controls inflation? अगर इन्फ्लेशन हो गया है तो गवर्नमेंट क्या करेगा? There is a committee called Monetary Policy Committee. Yes or no? 2016 से हुआ है. ठीक है. Monetary Policy Committee में 3 गवर्नमेंट मेंबर्स प्लस 3 RBI. 3 RBI and it will be headed by governor. It will be headed by governor. Fine. Before 2016 it was only the RBI which was doing, but now since 2016 it is the government plus RBI. वो कंट्रोल करते हैं. कंट्रोल कैसे करेंगे? थ्रू सम टूल्स. रेपो रेट, यू नो ना, रेपो रेट, थ्रू रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देयर आर लॉट ऑफ टूल्स. फाइन. नाउ MPC controls inflation. It means MPC uses which index? WPI or CPI or both? It is only it uses the CPI. It uses CPI. WPI release होता है. It is released by Ministry of Commerce, Economic Advisor. But the MPC uses CPI index. ठीक है? Because consumer है ना. After all, it is everything is for the consumer. हम बोलते हैं ना, हम वोट देते हैं महंगाई कम करो, सरकार को बोलते हैं ना महंगाई बहुत बढ़ गई है, आलू का भाव बढ़ गया है, प्याज का भाव बढ़ गया है. ठीक है. अब तुम बोलोगे सर हम क्या आलू प्याज खाने आए हैं बस. पर एक चीज़ बताओ, यहाँ पे बिरयानी का भाव क्यों नहीं बढ़ता है? सी द थिंग इज इट इज सो डिमांड बिरयानी. एवरी डे पीपल ईट हियर बिरयानी. यस और नो? बट प्राइसेस आर नॉट दैट मच हाई. 120 में मिनी बिरयानी आ जाता है, उसमें 3 बंदे खा सकते हैं. मैं तो सुबह खाता हूँ, फिर रात को भी वही बिरयानी खा लेता हूँ 120 रुपये में. ठीक है. ओके. सो इट इज पब्लिश्ड बाय, याद रखना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO. एंड दिस नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MOSPI बोलते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है. WPI किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इकोनॉमिक एडवाइजर. सो WPI मेजर्स द प्राइस चेंजेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ए होलसेलर. इट मेजर्स द पर्सपेक्टिव फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ए कंज्यूमर. ठीक है. So in WPI, it measures the price of goods sold by the first wholesaler to the next wholesaler or the retailers. Now comes ये PPI. Now PPI एक ऐसा इंडेक्स है जो कि अभी तक it is not yet used, but in future it can be used. ये होता है, it measures the average change over the time in the selling prices received by domestic producers of goods and services. ये होलसेल लेवल पे है. ठीक है. ये प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूस जो करता है उस लेवल पे है. एक है कंज्यूमर लेवल पे, एक है होलसेल लेवल पे, और एक है एक प्रोडक्ट को एक प्रोड्यूसर बनाएगा ना, या फिर ऐसे आ जाएगा ऊपर से. सो इट मेजर्स द प्राइस चेंज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द सेलर, जो बनाता है. इट मेजर्स द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड बाय द प्रोड्यूसर to the first buyer, that is wholesaler, that is producer wholesaler level. यहां पे होलसेलर, एक होलसेलर दूसरे होलसेलर को बेचता है, उसका चेंज. यहां पे रिटेलर एंड कंज्यूमर. सिंपल. तो प्रोडक्शन लेवल पे जो प्राइस चेंज होता है दैट इज
PPI, but it is not measured and not calculated and not published also, because abhi tak it is not a reality, but in future it may happen. And this PPI is used in foreign countries. And it is also good, right? Because from producer point of view also, the inflationary trends needs to be known. Fine, these three are important. So when you get an inflation question, can you put this in way forward? Yes or no? It should be brought, right? To know more in a way, in a correct manner, in a more proper manner, you can know the inflationary trends. Because जब ट्रेंड पता चलेगा तभी जाके अच्छा पॉलिसी ला सकता है. CPI को फॉलो कर रहा है, देन वाई नॉट प्रोड्यूसर ने क्या मतलब गलत किया है? ठीक है, अंडरस्टूड? ओके. So all these things are written, you can check what I told you now, all these are written in this format, NSO. Now Monetary Policy Committee uses CPI data to control inflation. Now only I told you, clear? Now there are 4 types of CPI. When you read inflation chapter, all these things will be covered. These are basic things. 4 प्रकार के CPI है. इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए है, एग्रीकल्चर लेबर के लिए है, रूरल लेबर के लिए है, एंड कंबाइंड. अब कंबाइंड जो सीपीआई कंबाइंड है, इट इज रिलीज्ड बाय मॉस्पी, दैट इज एनएसओ. बट जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर, रूरल लेबरर, दीज आर ऑल रिलीज्ड बाय लेबर ब्यूरो. लेबर ब्यूरो इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में लेबर ब्यूरो आता है. सो ऑल दीज 3 कम्स अंडर, लाइक दे आर रिलीज्ड बाय अ डिफरेंट मिनिस्ट्री, बट basically we take this combined by Ministry of Statistics and Program Implementation, in particular that is the NSO, National Statistical Office. Rural labor also Ministry of Statistics. No, rural labor सब यहाँ पे है. Labor Bureau, these 3 are Labor Bureau, only combined is MOSPI. Only combined is MOSPI. These 3 are released by Labor Bureau. ठीक है? All these things are mentioned in book. Okay, so inflation chapter you have to cover it in a very detailed manner, and MCQs. Clear? Next topic is a history topic. Union Minister hands over and history topic plus 1 mains topic, because question has already come in UPSC about Natraj. If you go to 3 to 4 years back, you will come to know Natraj के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है. Okay, Union Minister hands over 9th to 10th century Natraj idol to Archaeological Department office in चित्तरगढ़ Fort. तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है? नटराज आइडल. एक 9 to 10th सेंचुरी एडी का नटराज आइडल. नाउ नटराज क्या है? वेरी फेमस, शिवा का है. यस, तो नटराज के बारे में ऑलरेडी 1 यूपीएससी मेंस क्वेश्चन ऑलरेडी आस्क्ड. ये जो स्कल्पचर के बारे में एक आर्ट एंड कल्चर पे क्वेश्चन आता है. ओके, सो दोज आर गिविंग मेंस, दे कैन प्रिपेयर अ नोट अबाउट नटराज. सो इफ अ डायरेक्ट क्वेश्चन कम, यू कैन राइट. ठीक है, यू विल नॉट गेट ऑल दिस थिंग्स इन नॉर्मल बुक्स, बट क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड. ठीक है, नटराज क्या है? इट इज नोन एज अदलवालन कुथान साबेशन इन वेरियस तमिल टेक्स्ट. इट इज अ डिपिक्शन ऑफ हिंदू गॉड शिवा एज द डिवाइन कॉस्मिक डांसर. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द तांडव डांस होता है ना. ठीक है, नाउ तमिल डिवोशनल टेक्स्ट लाइक तिरुमुराई, वेरी फेमस, यू विल स्टडी दिस इन भक्ति. Tirumurai, the 12 books of southern Shaivism speaks that Nataraj is the form of Shiva in which he does creation, destruction, preserving, Maya and blessing. So all these things you have to write in your mains content if a question comes in paper about Nataraj. Now prelims and mains both this point. The classical form of the depiction appears in a pillar of rock cut temple at Siyamangalam, Abhani Bhajana, Paleshwaram temple constructed by Pallava king.
तो ये जो नाउ पल्लवा इज ए पार्ट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, यस और नो? पल्लवा इज ए पार्ट ऑफ, आफ्टर गुप्ता के बाद साउथ में पल्लवा आया, ठीक है? 5th 6th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम। पल्लवा इज फ्रॉम 5th 6th सेंचुरी। तो वहां से दीज नटराज स्टार्टेड। ओके, ये आइडल। रिमेंबर दिस टेम्पल, पल्लेश्वरम टेम्पल। नाउ इट इज द oldest known Nataraj sculpture in India. Now if a prelims question comes, the oldest known Nataraj sculpture in India is from the Chola Empire. Wrong. Chola Empire में नटराज है लेकिन oldest नहीं है। चोला से पहले, बिफोर चोला, पल्लवा के टाइम से नटराज है। क्लियर? एलिफेंटा केव्स, एलोरा केव सब में है, बट ओल्डेस्ट ये है। बादामी केव्स, बट सबसे अगर ज़्यादा फेमस हुआ बुक्स में अगर देखोगे तो 10th सेंचुरी एडी में चोला टेम्पल्स में नटराज बहुत है, नटराज कल्चर। नाउ एलोरा, ऑलवेज यूपीसी आस्क अजंता एलोरा, हर ऑल्टरनेटिव ईयर पे एक एक क्वेश्चन, लास्ट ईयर भी पूछा था, ठीक है? एलोरा, अजंता, एलिफेंटा, बादामी, चोला डायनेस्टी, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ योर स्टैटिक एंशिएंट हिस्ट्री। प्लीज कवर इन डिटेल, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। एलोरा पढ़ रहे हो मतलब कौन से डायनेस्टी, कौन सा रिवर, आसपास कौन सा रेंज, एवरीथिंग यू हैव टू कवर। एलोरा का रिवर क्वेश्चन आया था दिस ईयर प्रीलिम्स, ठीक है? सिमिलरली एलिफेंटा, देखो एलोरा पूछा गया है बार बार। They have already asked Ajanta, they have asked, they may ask again also, but in a different format. Elephanta अभी तक पूछा नहीं है, मतलब recent some years में। बादा में भी पूछा नहीं, so you can cover all these things. I'll cover in my ancient, but before I cover, you have to cover all these things in detail. I'm using the word in detail. Okay, if you want to clear prelims. These 4. Better to study from internet. One reference book is okay. I've given you one reference book. Now add on करो इंटरनेट से। इंटरनेट से 3 से 4-5 साइट से इंफॉर्मेशन, like take the information and make your own book. ठीक है? No need to depend on anyone. Okay. Even अगर क्वेश्चन आएगा कि ये जो नटराज है ये इंडिया से बाहर भी मिलता है क्या? यस, मिलता है। कैम्बोडिया में मिलता है। अंकोर वाट टेम्पल वेरी फेमस, इट इज ए हिंदू बुद्धिस्ट टेम्पल। अंकोर वाट गए हो? इससे तो बोलते हो जैसे मतलब अभी वहाँ से फ्लाइट निकल के अंकोर वाट से पहुँचा। अरे लेट क्यों हुआ क्लास में? तो अंकोर वाट गया था, अभी जस्ट आया, अभी आया। ओके, कैम्बोडिया, बाली, ये सब लाइक ऑल दिस प्लेसेस पे मिलता है सेंट्रल एशिया में। Nataraj is celebrated in 108 poses of the Bharatanatyam with Sanskrit inscriptions with Natya Shastra, very famous, and the Nataraj temple in Chidambaram, इसमें सब ये सब स्कल्पचर मिलता है। Now what is नाट्य शास्त्र? कवर करो, सब आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। What is नाट्य शास्त्र? And here you have to cover one specific. See, I'm giving you the topics. Questions will be asked. I'm telling you, questions will be asked in prelims. Cover, when you cover Chola, cover the Chola temples. Cover Chola temples, which god? Mostly Shiva, and any nearby unique thing, any unique sculpture, make notes. बृहदेश्वरा टेम्पल, वो सब 3 से 4 टेम्पल है, यू हैव टू कवर। ओके, ठीक है। This is the sculpture. Okay, now coming to a science and tech topic. So I'm again and again telling science and tech topic will be from current affairs, but it will be from a, in Hindi we call छुपा हुआ current affairs. जो science and tech बाहर मिलता है उससे कम आएगा, जो बाहर है लेकिन मिलता नहीं है उससे ज़्यादा आएगा। काफ़ी डीप मीनिंग है, इसको समझ जाओगे, जितना जल्दी समझ जाओगे यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे। काफ़ी डीप मीनिंग है।
मिलता है नहीं मिलता है, बाहर दिखता है नहीं दिखता है. ठीक है, एनीथिंग विच इज अवेलेबल वेरी फ्री ऑफ कॉस्ट, इट हैज़ वेरी लेस चांसेस ऑफ बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम. ठीक है ना, जब बहुत कुछ मिल जाता है बाहर, हम वो बुक ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं ना, वही थिंक अरे यार मैंने पढ़ लिया. लेकिन वहाँ से एग्जाम पे आना चाहिए ना. सो यू हैव टू कवर साइंस एंड टेक, लाइक जस्ट गो थ्रू द पास्ट पेपर्स, यू विल कम टू नो. जस्ट गो थ्रू द पास्ट पेपर्स जस्ट टू सी द ट्रेंड, क्वेश्चन कैसे आता है. ओके अभी रिसेंटली, नॉट रिसेंटली, येस्टरडे 18 जैन में मिटी, मिनिस्ट्री ऑफ, मिटी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड, हाँ, तो इट लॉन्च्ड अ टेक्नोलॉजी, एक टेक्नोलॉजी. तो साइंस एंड टेक, टेक्नोलॉजी क्या है? फॉर बायोसेंसिंग सिस्टम फॉर डिटेक्शन ऑफ एंडोक्रिन डिसरप्टिंग केमिकल्स इन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स. टॉपिक क्या है? यहाँ पे दो चीज़ है. ये एक साइंस का भी टॉपिक है, जनरल साइंस, एनवायरमेंट, और साइंस एंड टेक का भी टॉपिक है. बिकॉज दिस इज अ टेक्नोलॉजी, ए बायोसेंसिंग सिस्टम. किसके लिए? टू डिटेक्ट एंडोक्रिन डिसरप्टिंग केमिकल्स, EDC. Now what are EDC? You have to cover. This is becomes a environment general science topic. Endocrine disrupting chemicals. Aquatic organisms में इकोसिस्टम पे EDC को डिटेक्ट करने के लिए the ministry has launched a biosensing system. This is in news. ठीक है? So here the system name is, just remember, MEAN, MEAN. Just remember MEAN. ठीक है, इसका फुल फॉर्म है द बायोसेंसिंग बेस्ड EDC डिटेक्शन सिस्टम. बायोसेंसिंग बेस्ड EDC, that is endocrine disrupting chemicals. We'll study what is EDC. They'll simply ask recently in news, in double quote, capital letters, full form nahi, they'll ask MEAN is related or associated to which of the following. ठीक है, वन ऑप्शन रहेगा एंडोक्रिन डिसरप्टिंग सिस्टम्स. ये वर्ड ही इतना कॉम्प्लेक्स है, पहले तुम उसको कैंसिल करोगे. फिर एक बहुत ही इजी वर्ड रहेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जहाँ पे रहता है, हमारा जो आँख है वहाँ पे जाता है. बिकॉज वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इतना प्यारा वर्ड है, इतना प्यारा वर्ड है, अच्छा लगता है सुनने में. कहीं पे कुछ मिला नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नाउ व्हाट आर EDC? एंडोक्रिन डिसरप्टिंग केमिकल्स. यहां पे देखो, दीज आर सब्सटेंसेस इन द एनवायरमेंट, एयर में, सॉइल में, वाटर सप्लाई में, फूड सोर्सेस, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट दैट इंटरफियर विथ नॉर्मल फंक्शन ऑफ योर बॉडी. एंडोक्रिन सिस्टम. एंडोक्रिन क्या होता है? नेटवर्क ऑफ जो ग्लैंड्स होता है ना, ग्लैंड्स, नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस, स्टोर एंड सीक्रेट हॉर्मोन्स, वो एंडोक्रिन होता है. ठीक है, अब उसमें जो प्रॉब्लम होता है, ठीक है, उसको जो प्रॉब्लम करता है, दैट केमिकल इज कॉल्ड एंडोक्रिन डिसरप्टिंग. दोज केमिकल्स विल डिसरप्ट योर, इन अ वे, योर हार्मोनल सिस्टम. ठीक है, and these, since EDCs come from different sources, people are exposed in several ways, including the air we breathe, the food we eat, the water we drink. Even EDC, these chemicals can enter your body through your skin. Skin से भी enter कर सकते हैं. ठीक है, understood? So इस चीज को, now see, they can enter your body also. But here in our current affairs is not about human body. It is about aquatic ecosystems. So MEAN is not for human body. MEAN is for aquatic systems. Endocrine वहाँ पे भी होता है, aquatic को भी होता है, humans को भी होता है. But this technology is not for humans. Mix मत कर देना. ठीक है, यही होता है between the lines पढ़ना. हाँ, हमने पढ़ा था एंडोक्रिन है, एंडोक्रिन भी पढ़ा था, हाँ, MEAN भी उनके लिए है.
हमारे लिए भी, क्योंकि हम सब मीन हैं। ठीक है, सी नाउ एग्जाम्पल्स, वो भी जरूरी है। एग्जाम्पल्स, सी examples of common endocrine disrupting chemicals. Industrial chemicals and pesticides can leach into soil and groundwater and make their way into the food chain by building up in fish, animals, people. Food chain के चैप्टर में पढ़े थे, yes or no? Chemicals जाता है और in a way it goes into the aquatic body. Bioaccumulation, biomagnification. Cover today bioaccumulation, biomagnification. कवर हुआ है चैप्टर, कवर हुआ है ना, ओके। सो कवर दैट रिलेटेड थिंग्स, बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन। प्लीज स्टडी टॉपिक वाइज। ये बुक पकड़ के बैठ मत जाओ, ये बुक खत्म करेंगे फिर हम और कुछ पढ़ेंगे, वैसा नहीं होता है। बी इंटेलिजेंट, टॉपिक वाइज। यू हैव टू वेरी सून, जितना सुन यू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ इंटरनेट, the sooner you understand that, the sooner you will be nirvana. किसी ने मुझे एक दिन भेजा था, सर कुछ क्वेश्चंस मिल नहीं रहा है, मैंने बहुत सर्च किया, तो मुझे बोला टॉपिक भेजो, तो उसने मुझे टॉपिक भेजा, मैंने उसको 5 PDF भेजे विदिन 2 seconds। नहीं, ये आपको कहाँ मिला? मैंने बोला इंटरनेट से मिला ना, मैं 2 दिन से ढूंढ रहा था, मुझे नहीं मिला। मैंने तुम क्या ढूंढ रहे थे फिर? तो PDF ढूंढ रहे थे या मूवी ढूंढ रहे थे? सो दिस इज यू हैव टू नो एग्जैक्टली व्हाट टू टाइप, फिर जाके वो आएगा। एंड इट विल ओनली हैपन वंस यू डू इट। प्रैक्टिस करो, ओके? प्रैक्टिस करो का ये मतलब नहीं है कार्तिक कि घर जाके डेली तबला की तरह वहां पे बजाओगे। क्या कर रहे हो? सर आई एम प्रैक्टिसिंग। मैं क्या कर रहे हो? इंटरनेट प्रैक्टिसिंग। ओके। Industrial chemicals, non-organic produce can have pesticide residues. Just exam के लिए कैसे याद करना मैं बोल देता हूँ। Which of the following are sources of EDC? ऐसा करके prelims में आएगा, ठीक है? Keywords, always go for keywords. This packaging. Packaging भी हो सकता है, ये सब no? हो सकता है या नहीं? तो जब पैकेजिंग में आता है तो वो तुम्हारे हाउस होल्ड के अंदर भी एंट्री कर दिया। प्रोसेस्ड फूड, यस और नो? हम बोलते हैं ना प्रोसेस्ड फूड मत खाओ। डे टू डे में वी यूज इट, बट EDC कोई पूछ लेगा, अरे यार EDC क्या है? देखो, दीज फोटोएस्ट्रोजन, ये सब वर्ड्स नहीं आता है ज्यादा, वेरी बेसिक चीज आएगा ये डे टू डे लाइफ का पेपर में। फर्नीचर में भी होता है। सो दीज आर ऑल सोर्सेस ऑफ EDC। सम कॉमन EDC यूज होता है, देखो इसका यूसेज भी है। DDT, वेरी फेमस DDT, क्लोरोपाइरोफोस, ultragen, no need to remember, but you have to remember lead, cadmium, these words you have to remember. Children product में यूज होता है। बायोफिनल, पॉलीक्लोरिनेटेड बायोफिनल, डायोक्सिन, ये सब इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स है, लुब्रिकेंट्स है। ये सब आपको एक एक बार रीड करना है। पर्सनल केयर में यूज होता है, मेडिकल में यूज होता है, सनस्क्रीन में यूज होता है, ओके? सनस्क्रीन क्या होता है? वो लगाता है ना, उसमें लगा था ना, इसलिए पागल भी हो जाते हो। अब पता चला पागल क्यों होते हो? बिकॉज ऑफ EDC। इसलिए कॉस्मेटिक यूज मत करो। मैं बचपन से यूज नहीं कर रहा हूं, इसलिए तो पागल नहीं हूं। ठीक है, वो जो कॉस्मेटिक लगाते हो ना, मत लगाओ। नेचुरल इज नेचुरल ऑलवेज। कार्तिक लगाते हो क्या? क्या लगाते हो? कौन सा वाला? VLCC, विको टर्मरिक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, ये भी साइंस एंड टेक का टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अभी क्या हुआ है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अभी चल रहा है, मीटिंग स्टार्ट हो गया।
yesterday से, अभी 3-4 दिन न्यूज़ आएगा, ठीक है, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. सो कुछ नहीं है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एडवोकेट किया है, एडवोकेट मतलब प्रमोट कर रहा है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बट कुछ और लोग हैं जो कि फियर भी कर रहे हैं. दे आर फियरिंग फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. अब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा तो जॉब लॉस भी होगा, यस और नो. नाउ हियर 2 टॉपिक्स, व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फोर्थ, व्हाट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, एंड 1 मेंस क्वेश्चन. द आंसर आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. ठीक है, this is the thing. Simply they will take this dot, analyze 150 words. क्वेश्चंस यहीं से ही आते हैं. GS2 में आ सकता है, GS3 में आ सकता है, GS1 में भी आ सकता है. दिस इज ए वेरी एवरग्रीन क्वेश्चन. सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज टेक्नोलॉजी कैन नेवर एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, इट हैज टू एग्जिस्ट विद इन सोशल रियलिटीज. हो गया ना मेंस क्वेश्चन, परफेक्ट मेंस क्वेश्चन. टेक्नोलॉजी कैन नेवर एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, मतलब वो बोलने की कोशिश कर रहा है और ये क्रिटिक्स बोल रहे हैं. फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के क्रिटिक्स मीन्स दोज आर नॉट सपोर्टिंग फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. दे आर सेइंग कि टेक्नोलॉजी अच्छी चीज है बट इट कैन नेवर एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, उसको सोशल रियलिटी के साथ रहना है. वेरी गुड थिंग, राइट और रॉन्ग, वेरी गुड थिंग. हम टेक्नोलॉजी, जितना भी आप टेक्नोलॉजी इन्वेंट करो, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इज ए टेक्नोलॉजी, राइट, बट इट शुड ऑल्सो टेक केयर और एग्जिस्ट विद इन आवर सोशल रियलिटीज. इट शुड केटर टू आवर सोशल प्रॉब्लम्स. ठीक है, ओके. तो विल कवर दिस एंड विल कवर दिस आंसर. ओके, ये मेंस का बन गया. ठीक है, मेंस का. So today you have to write this question. I'll give the answer here. Just write it. देखो. So technology can never exist in isolation. It has to exist within social reality. Discuss in respect with fourth industrial revolution. General question. So first of all, you have to write what is fourth industrial revolution. So fourth industrial revolution refers to Fourth industrial revolution refers to the use of different technologies to blur the boundaries between the digital, physical and biological worlds. फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या है? टेक्नोलॉजीज, बहुत सारे टेक्नोलॉजी जो कि हमारा जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड, डिजिटल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड, जो डिफरेंस है ना, जो बाउंड्री है, सबको हटा देगा. Which is a good thing. If you see from a innovation point of view, it's a good thing. The best example of this blurring of worlds is the reproductive ability of first living robots called xenobots. रोबोट भी रिप्रोड्यूस करने लगे हैं, पर ये तो हमको पता ही था. रजनीकांत की मूवी देखे ना, छोटा चिट्टी आता है ना, कितना आता है, सब उड़ के आता है ना एंड में. फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो, एंड ओनली चिट्टी कैन डू इट. 2.0, हाँ, चिट्टी 3.0 बोलता है ना. So xenobots. So it means now see reproductive ability क्या है? बायोलॉजी क्या है? मतलब क्या किया है इन्होंने? मतलब बायोलॉजी की पूरा वही जो बायोलॉजी बुक है ना, वो बुक बोल रहा होगा ये क्या मैंने इतना बड़ा गलती किया आप लोग को पढ़ा के, और ये टेक्नोलॉजी वाले आके क्या क्या कर रहे हैं देखो. Fuel for fourth industrial revolution is the ability to capture, store, disseminate model data. और ये रिप्रोडक्टिव जो हुआ है उसको भी डेटा स्टोर भी होगा. ओके, डेटा स्टोर होगा, कैप्चर करेंगे उस डेटे को. तुमको अगर चाहिए जाओ रोबोट बनो. छोटा चिट्टी, बड़ा चिट्टी. Though the world stands divided over its utility. अब ऐसा नहीं है कि everyone supports it. Though the world stands divided over its utility and its impact on our future, the countries are investing. अब देखो, अब ऐसे अगर बच्चे आएंगे तो फिर obviously it is not natural, right?
इट्स नॉट नेचुरल. सो हमारा जो कंट्री है इंडिया, इट इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग. It has recently come up with the fourth industrial revolution for sustainable transformation cancer care model. अब this is good, कैंसर है, इट्स ए रियलिटी राइट. तो हेल्थ में हमारा कंट्री कर रहा है. हमारा कंट्री जेनोबोट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा है. ठीक है. सो हेल्थ में इन विच फोर्थ जनरेशन टेक्नोलॉजीज वुड बी यूज टू प्रिवेंट और टू प्रोवाइड बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज. नाउ इज हेल्थ केयर नॉट ए सोशल रियलिटी? In today's our country, our health system is very bad. We know what happened in COVID. Yes or no? So this is one social reality. So the technology should come or should cater to our social reality. One example is health system. When you write one point in health system, give the example of this cancer care model recent. हो गया एक point. First you write the problem. So you write in the problem what you write. Lot of issues you write. One issue is like biology. This biology is very natural, right? It is one problem. Yes or no? और सोचो आगे फ्यूचर में बस रोबोट्स ही आएंगे. ठीक है. मतलब सपोज थिंक यू ऑल आर रोबोट्स. व्हेन यू गो फॉर ए यूपीएससी एग्जाम, तुम कैसे चलोगे? रोबोट की तरह चलोगे ना, ऐसे ऐसे करके. कार्तिक बोले मैं तो वैसे ही ऐसा चलता हूँ नॉर्मली. ओके. वन सेकेंड प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट होगा या नहीं? अभी आवर वन ऑफ द रियलिटी इज अनएम्प्लॉयमेंट इज स्टिल देयर, राइट, ऑन अ राइज. बट व्हेन दिस कम्स अगेन अनएम्प्लॉयमेंट विल राइज. ओके. सेकेंड थिंग, 4G technologies, fourth industrial revolution technologies need that kind of knowledge also. We also do not have that kind of knowledge because our 49% is in agriculture. Our 49% is in agriculture. अब एग्रीकल्चर करेंगे 4G टेक्नोलॉजी वो जेनोबोट करेंगे. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द आंसर. So there are lot of concerns. See, according to a report, 20% of legal work in India would be taken up by artificial intelligence software. क्या हुआ? अच्छा, हाँ अच्छा पॉइंट है. तुम्हारे तो ये बोल रही कि तुम्हारे भी जॉब जाएगा. So 20% जॉब्स ऑफ लीगल वर्क, लॉयर की बात नहीं हो रही है, लीगल वर्क, एनी वर्क विच इज लीगल, वो चला जाएगा. बिकॉज उनके जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर आ जाएगा. वो सब सॉफ्टवेयर करेगा, तुम्हारी क्या जरूरत है फिर? हाँ, सबका जॉब जाएगा. तो रोबोट बनो सब. जेनोबोट. ठीक है. और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है. सेफ्टी, एथिक्स इशू है, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा, नोबडी नोज. तो 1 point you will write from safety side, 1 point you can write from biology side, 1 point from job side or economy point of view. All these things तुम negative लिखोगे. फिर then you have to write coming to the social. These are all social realities also. Real world problems are creeping in virtual reality. Sexual harassment हो रहा है सोशल मीडिया पे, हो रहा है नहीं? Is a social reality now. Now how the technology caters to this problem is more important. ज़्यादा important वही है कि these problems are being solved or not. We don't know. क्या पता प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो सकता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सेक्सुअल हैरेसमेंट कैन इंक्रीज. वी डोंट नो. ओके. सो टेक्नोलॉजी कैन नेवर एग्जिस्ट इन आइसोलेशन. इट हैज टू एग्जिस्ट विद इन सोशल रियलिटीज, द ऑथर सेज. दिस एक्सप्लेन्स while automation in garment factories in Bangladesh is causing widespread job losses. ऑटोमेशन हो रहा है, वाइड स्प्रेड जॉब लॉसेस हो रहा है, पर्टिकुलरली अमंग वुमेन. इट हैज इंप्रूव द वर्किंग कंडीशन ऑफ वर्कर्स इन जर्मनी एज द यूरोपियंस इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर वर्कर्स. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट. जॉब लॉस अगर हो रहा है तो गवर्नमेंट हैज टू टेक केयर ऑफ दैट वर्कर्स. सो दिस इज हाउ यू हैव टू फ्रेम दिस आंसर. ओके. ठीक है. So fourth industrial revolution success, it rests on policies and the social acceptance. Social acceptance means whether that technology is solving your social problems. Clear? It is a potential mains question.
Okay, write it down. Today write it down and show it to me. Okay, now coming to World Economic Forum, we'll connect it to IR. क्या है World Economic Forum? Is it an international organization? Basically organization तो हमने लिखा है, but it is more of an event. It is more of an event. Every year कहाँ पे होता है? एक ही जगह पे होता है. Where? Davos पे होता है. ठीक है. इट इज़ लाइक एन NGO, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड NGO, जहाँ पे लोग जाते हैं, बैठते हैं और बात करते हैं. क्या बात करते हैं? रिलेटिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमी. एनीबडी कैन गो. ठीक है. प्राइवेट पीपल कैन गो, बट द थिंग इज यू नीड टू बी कॉल्ड. ऐसा नहीं कि कोई बुलाया नहीं, जाके पहुंच गए, मेरे को सीट दो मैं बैठूंगा इधर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में. करण जौहर जा सकता है, गया था एक बार. ठीक है. एनीबडी कैन गो. नाउ एनुअली होता है. इट वाज फाउंडेड बाय 1971 बाय, दिस इज द नेम, क्लाउस श्वाब. घर जाके इसके प्रोनाउंसिएशन में 10-15 मिनट वेस्ट मत कर देना. ठीक है. क्या है? SCHWAB, श्वाब. क्या बोलो? ओके. दीज आर द रिपोर्ट्स. रिमेंबर, वन रिपोर्ट क्वेश्चन आता है. ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023, नेट जीरो इंडस्ट्री ट्रैकर, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इज वेरी फेमस. हर साल ये न्यूज में आता है. डीमिस्टिफाइंग द कंज्यूमर मेटावर्स, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक इज ऑल्सो फेमस. सो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट एंड ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. ठीक है. नेक्स्ट पॉलिटी टॉपिक. इलेक्शन कमीशन हैज अनाउंस्ड बाय इलेक्शंस. ठीक है. 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लक्षद्वीप में क्या, वो जरूरी नहीं. व्हाट आर बाय इलेक्शंस? जब सीट वैकेंट होता है तो उसी सीट पे बाय इलेक्शन होगा. फाइन, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इफ यू रिमेंबर. नाउ टेल मी, बाय इलेक्शन कॉन्सेप्ट इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन? नो, इट इज मेंशन्ड इन RP Act of 1951. This is so RP Act of 1951. According to this act, the time limit for a bypoll means by election, to fill vacancies either for the parliament or legislative assembly is 6 months from the date of occurrence of vacancy, provided that nothing contained in this section shall apply if remainder, अगर बाकी का जो टाइम है, रिमाइंडर टर्म इज लेस देन 1 year, नो नीड टू कंडक्ट. सेकेंड इज, अगर इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया कि इट इज डिफिकल्ट टू कंडक्ट इलेक्शंस, so elections will not happen. One is the time limit less than 1 year, one is election commission, but election commission has to consult with central government. It may be anything, for example it may be a law and order problem. अगर कुछ law and order problem है, but it is the election commission who has to certify it. Clear? And it is not mentioned in constitution. It is mentioned in RP Act of 1951. We all have discussed all these things in our polity class. Remember? So these are the two conditions when by elections will not happen. Less than 1 year अगर बाकी है टाइम, एंड इलेक्शन कमीशन आफ्टर कंसल्टिंग अगर डिक्लेयर करता है. ठीक है. नेक्स्ट. ओके. DGFT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड. दिस इज ए इकोनॉमी टॉपिक. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड. नाउ आई टोल्ड कि 15-16 इकोनॉमी क्वेश्चन में से 8 to 11 अगर आएगा कॉन्सेप्ट लेवल, 3 to 4 नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे. ठीक है. DGFT इज वन ऑफ देम. DGFT सिंप्लीफाई किया है, कंपोजिशन फी फॉर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन एक्सटेंशन अंडर एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम. हियर यू डू नॉट नीड टू स्टडी ऑल दिस. यू नीड टू नो व्हाट इज द वर्क ऑफ DGFT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है क्या. दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, एंड दिस एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम इज नथिंग, इट इज समथिंग रिलेटेड टू एक्सपोर्टर्स. जस्ट रिमेंबर, जो एक्सपोर्ट करता है ना, उनको एक इंसेंटिव के लिए एक स्कीम है. बट हियर फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू यू नीड टू नो व्हाट इज DGFT. एनीवन हियर नोज? सुना है नाम कभी DGFT? सुना नहीं है? पेपर पढ़ते नहीं हो क्या? सुना है? कहाँ पे सुना है? क्या हुआ? मैंने मना किया था पेपर पढ़ने. ओके.
DGFT इज डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, इज अ फुल फॉर्म. DGFT क्या करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में है. ठीक है. सी एनीथिंग रिलेटेड टू एक्सपोर्ट्स एंड स्टफ इट कम्स अंडर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री. ठीक है. नाउ DGFT is headed it is an organization, is an attached office under Ministry of Commerce. काम क्या करता है? Involved in the regulation of foreign trade, regulation and promotion of foreign trade through regulation. मतलब foreign trade को regulate करता है. जो foreign trade होता है ना, export is a part of foreign trade, right? Export, import, ये DGFT करता है. सिंपल. और किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में 1991. तो फॉरेन ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए इट इज द वर्क हाउ टू इंप्रूव फॉरेन ट्रेड, DGFT करता है. एक्सपोर्टर को अगर कुछ इंसेंटिव दे दिया है, इट गिव सम इंसेंटिव, तो फॉरेन ट्रेड इंप्रूव होगा या नहीं? सिंप्लीफाई कर दिया है. एक्सपोर्टर्स के लिए ही तो है, फॉरेन ट्रेड को बढ़ाना इसका काम है, DGFT का काम. इट द वर्क ऑफ DGFT इज टू इंक्रीज दैट. सो इट डज ऑल दिस थिंग्स. सिंप्लीफाई कर दिया, कुछ लाइक काइंड ऑफ कुछ इंसेंटिव दे दिया. ऑल दिस थिंग्स विल बी डन बाय DGFT. नाउ व्हेन यू डू DGFT देयर इज अ रिलेटेड टॉपिक दैट इज कॉल्ड इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड, IEC. जस्ट रिमेंबर फॉर प्रीलिम्स टॉपिक, दिस कोड इज ए की बिजनेस आइडेंटिफिकेशन नंबर. एक कोड होता है बिजनेस आइडेंटिफाई करने के लिए, एक नंबर दिया जाता है which is mandatory for exports or imports. No person shall make any import or export except under an IEC number granted by DGFT. तो DGFT इस नंबर को ग्रांट करता है. You can't import or export anything without having this code IEC. ठीक है. in case of import or export of services और टेक्नोलॉजी, ये गुड्स की बात हो रही है. द IEC shall be required only when the service or technology provider is taking benefits from the foreign trade policy or is dealing with specified services or technology. So here first of all you have to cover today the recent foreign trade policy. Just go for it. 2020 to 2025 just cover, just read foreign trade policy क्या है. हर 5 साल में एक पॉलिसी आती है, foreign trade policy by Ministry of Commerce. foreign trade कैसा होगा, क्या होगा, पॉलिसी. इट्स नॉट अ लॉ, इट्स अ पॉलिसी. ठीक है. अगर इफ यू आर इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग एनी सर्विस और एनी टेक्नोलॉजी, ठीक है, सो इट विल बी रिक्वायर्ड, दिस कोड विल बी रिक्वायर्ड ओनली व्हेन द सर्विस इज टेकिंग, सो सर्विस प्रोवाइडर इज टेकिंग बेनिफिट अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. नहीं तो नहीं चाहिए. और ये जो मैंडेटरी है ये गुड्स के लिए है. ठीक है. अंडरस्टूड. Now, consequent upon introduction of GST, IEC number is the same as the PAN of the firm. The IEC would be separately issued by, same है, मतलब जो PAN है फर्म का, फर्म मतलब कंपनी का, it is the same. But remember, IEC is separately given by DGFT, Director General of Foreign Trade. समझ में आया? Next, Health Minister says India is committed to promoting Indian life sciences as globally competitive sector. Potential mains question. Just type life sciences sector. Mains में GS2 या GS3 में आएगा. You have to write life sciences में इंडिया का क्या prospect है. Something like that a question will come. Just make the topic. Anyone who is writing mains, life sciences sector, because health minister ने बोला है तो it is a news. So India is committed to promoting Indian life sciences as globally competitive sector. Globally competitive sector. Union Health Minister कौन है? मनसुख मंडाविया. मंडाविया? हाँ? तुम्हारे घर से है क्या? हाँ? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारे घर के बाजू में रहता है, डेली बात करते हो उसके साथ. हाय हाय बोलता है, मांडा भैया कैसा है, ऐसे बोलते हो क्या? बात करने लगा है यार ये. प्रीलिम्स क्या क्या कराता है. यू स्टार्टेड टॉकिंग. हाँ. Dumping tax and counterfeit tax and
काउंटर फिटिंग, एंटी डंपिंग वो सब करेंगे जब टॉपिक आएगा. ओके, डू वन थिंग, व्हेन यू आर स्टडिंग दिस DGFT, गिविंग यू वन मोर वर्क. स्टडी काउंटरवेलिंग ड्यूटीज. काउंटरवेलिंग, COUNTER, काउंटरवेलिंग, VAILING. Okay, so I thought of covering here, but I thought वो वीडियो बड़ा हो जाएगा ना. But again it will come, one day or the other will come in current affairs. 6 महीने का करंट अफेयर मेरे साथ करोगे, तुम्हारा UPSC का कोर्स खत्म हो जाएगा. सीरियसली, वी आर नॉट डूइंग करंट अफेयर, वी आर डूइंग केसरी ऑफ सारे सब्जेक्ट का. ठीक है, तो अगर भी क्लास अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, एटलीस्ट वीडियो में देखो, चेक करो. सी, कवर दिस टॉपिक्स, ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. नाउ DGFT कवर किया, जस्ट सी, आई विल नॉट टेल नाउ. DGTR क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड. ट्रेड में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो रेमेडी यही देगा, ट्रेड रेमेडीज. कवर हियर यू विल कम टू नो सम वर्ड्स व्हिच आर totally economic topics. The words are anti-dumping duty, go through the topic. If any doubt, ask me. Countervailing duties. Okay. After you cover this from internet, go to my channel, type DGTR. You will get 3 or 4 very good MCQs. डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज. ठीक है, ये टॉपिक वहीं पे खत्म हो जाएगा. एंड व्हेन यू कवर काउंटरवेलिंग एंड ये सब ड्यूटीज, तो इकोनॉमी का वो पार्ट भी कवर हो गया. ऑल दिस थिंग्स आर पार्ट ऑफ, बोला था ना, BOP, बैलेंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सब वहीं पे आता है. बट बुक में कवर्ड नहीं है, फुल फ्लेजेड बुक में कवर्ड नहीं, थोड़ा इंटरनेट का हेल्प लेना पड़ता है. ठीक है, ओके. ओके, नाउ कमिंग टू लाइफ साइंसेस. ठीक है, यूनियन मिनिस्टर सेड कि लाइफ साइंस, इंडिया इज कमिटेड टू प्रमोटिंग लाइफ साइंसेस इन अ ग्लोबल स्केल. नाउ व्हाट आर लाइफ साइंसेस? साइंस विच हैज लाइफ. हाँ, कौन है यहाँ पे बायोलॉजी के? इट्स अ गुड सब्जेक्ट. कैसे पढ़ लेते हो यार बायोलॉजी? दिमाग खराब हो जाता है सोच के. वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट. अच्छा, बायोकेमिस्ट्री भी है. मैं केमिस्ट्री लैब तक नहीं गया हूँ, ऊपर से तुम बायोकेमिस्ट्री डाल रहे हो अभी. Chemistry which has biology, that is biochemistry. Okay. You have done like what is your academic thing? Biotechnology and biochemistry, chemistry. अरे किया क्या है उसमें? BSc. अच्छा, BSc और MSc? BSc. हाँ. Microbiology. BSc and MSc chemistry also. देखा, हम तो बस PCA में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ +2 में, वो भी सही से नहीं हुआ. याद मत दिलाओ यार मेरा +2 और इंजीनियरिंग. मुझे खुद पे भरोसा नहीं हो रहा है, मैं कैसे यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ. वो एक डायलॉग है ना, रहना है तेरे दिल में, माधवन का पिक्चर है. तो इंजीनियरिंग ख़त्म हो जाता है, पूरा इंजीनियरिंग में वो पूरा बदमाशी करता है. फिर द मूवी गोज टू 4 years आफ्टर. तो वो एक इंस्टीट्यूट, एक कंपनी में सॉफ्टवेयर क्लासेस ले रहा है. तो वो आके बोल रहे, फर्स्ट डायलॉग टू द स्टूडेंट्स, फ्रॉम टुडे आई एम योर टीचर, आई टेक सॉफ्टवेयर क्लासेस. मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि मैंने अपना इंजीनियरिंग कैसे ख़त्म किया है, लेकिन स्टिल देन आई एम योर टीचर, सो आई टेक क्लास. ओके, सो ये है. अब देखो, लाइफ साइंसेस इज इन न्यूज़, बट लाइफ साइंस में कंटेंट कहाँ से लाएंगे? अभी रिसेंटली 2022, ठीक है,
इंडिया ने लॉन्च किया इंडिया का पहला नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस डेटा. द नेम इज IBDC, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, हरियाणा पे. लाइक ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा. ये कहाँ पे है IBDC? और वहाँ पे तुम ग्रुप 3 और ग्रुप 2 में अगर हो तो वहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा हैदराबाद और तुम खुशी खुशी हैदराबाद करके आ जाओगे, बिकॉज यू थिंक यहाँ पे बायोलॉजी अच्छा है. ठीक है, टैंक बंड है, ट्रीज अच्छा है, CCMB ऑल्सो देयर, CCMB लैबोरेटरी ऑल्सो देयर, करेक्ट. तो यू विल कनेक्ट कि हाँ इस CCMB के अंदर ही होगा ऑफिस है हरियाणा पे. हरियाणा देख के तो पहले कैंसिल करोगे, यहाँ पे तो हो नहीं सकता. ये है इंडिया का पहला नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंसेस इन इंडिया. एज पर द बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस ये है, IBC इज मैंडेटेड मीन्स इसका काम है, मैंडेटरी है, टू अचीव ऑल लाइफ साइंस डेटा जनरेटेड फ्रॉम पब्लिकली फंडेड रिसर्च इन इंडिया. जितना भी पब्लिक फंडेड रिसर्च हो रहा है लाइफ साइंस पे, वहां से जो डेटा है, ऑल दिस डेटा विल बी आर्काइव्ड बाय हुम? अरे बाय हुम? IBDC. ठीक है, IBDC की जगह HDFC मत लिख देना. ओके, ये जो डेटा सेंटर है विल बी सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. सो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस है ना, उसमें एक डिपार्टमेंट है, स्पेशल डिपार्टमेंट फॉर बायोटेक, दैट इज कॉल्ड DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. सो टुडे व्हाट यू डू, गो टू द DBT, बिकॉज आई एम टेलिंग यू, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. DBT जाओगे, go to the DBT site and search for schemes or initiatives. Some 4 to 5 initiatives, note it down for prelims. Any initiative which is very जिसका नाम बहुत अच्छा है, वो एग्जाम में आने का चांसेस है. अब आपको पता चल जाएगा, when you go to the site you will see the names are very good. सीरियसली नेम्स आर वेरी गुड, बट डोंट कीप, बच्चों का नाम मत रख देना वहाँ पे अपने पड़ोसी के बच्चों का नाम. ओके, ठीक है. देयर आर 2 डिपार्टमेंट्स, वन इज DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वन इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST. 2 डिपार्टमेंट है. DST इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, उसका कोई खास स्कीम नहीं है, एग्जाम में आने वाला स्कीम है वैसे, बट नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. बट DBT इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी इज ए टॉपिक, उसमें मेंस भी आएगा, प्रीलिम्स भी आएगा. ठीक है, ये सब और जरूरी नहीं है. ओके, दिस इज द प्राइड गाइडलाइंस. ओके, सो वी हैव ए PSU, बायोटेक को प्रमोट करने के लिए वी हैव ए PSU, उसका नाम है क्या है? बायरैक, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल 2012 से. दिस इज द PSU जो कि बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है इन द डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. योर वर्क इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, डिपार्टमेंट ऑफ DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इनिशिएटिव्स. गो फॉर दोज इनिशिएटिव्स व्हिच आर इम्प्लीमेंटेड बाय बायोटेक, इम्प्लीमेंटेड बाय, सिंपली टाइप बायरैक UPSC इन गूगल, यू टाइप, यू विल गेट टू नो द स्कीम्स. वहां से आपका बायोटेक्नोलॉजी स्कीम्स कवर हो जाएगा. क्लियर? अंडरस्टूड? ठीक है. बाकी मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये तो होता रहता है. ठीक है, ये सब में है. ठीक है, नेक्स्ट. ओके, लास्ट टॉपिक इज इंडिया सिंगापुर. क्या बोलते हैं? सिंगापुर. क्या बोलते हैं? मैं तो सिंगापुर बोलता हूँ. क्या? सिंगापुर बोलते हैं, सिंगापुर. हाँ, बहुत पाउट करते हो क्या? हाँ, आर नहीं स्पेल हो रहा है तुमसे. सिंगापुर, वही सिंगापुर. ठीक है, अगर मिर्जापुर हो सकता है तो सिंगापुर क्यों नहीं हो सकता? सिंघम, ये ज़्यादा हो गया. देखो, कभी कभार जो जोक होता है ना, सही से बोला करो. इंडिया सिंगापुर रिलेशंस. अभी धर्मेंद्र प्रधान कौन है? अरे धर्मेंद्र प्रधान नहीं जानते हो? एजुकेशन मिनिस्टर, ऑयल एंड नेचुरल गैस का मिनिस्टर है. इज फ्रॉम उड़ीसा.
ओके ठीक है। तो धर्मेंद्र प्रधान को पता नहीं कहाँ से मन आया सिंगापुर के बारे में। आई गेस धर्मेंद्र प्रधान जी वांट्स टू गो टू सिंगापुर इसलिए कुछ डायलॉग दे दिया। डायलॉग क्या है? इंडिया एंड सिंगापुर आर नेचुरल एलाइज विथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस इन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। ये सुन के मोदी बोलेगा तू जा सिंगापुर घूम के आ तो ये है, तो यहाँ ये तो न्यूज़ है। तो यहाँ पे हम कवर करेंगे आज इंडिया सिंगापुर रिलेशंस एंड रिलेटेड टॉपिक्स। सो इट इज टोटली IR। यहाँ पे आपको बहुत ही नया आज IR का मिलेगा, ठीक है। इंडिया सिंगापुर रिलेशंस, ये मिनिस्टर्स हैं हमारे, प्राइम मिनिस्टर्स, जानते हो ना इनको? नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ओके, दीज आर कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। कुछ नहीं है, ये सब नाम होता है, काम एक ही है कि काम कुछ है ही नहीं है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड करेंगे। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 2015 से, इन्वेस्टमेंट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दिस वन दैट इज FDI। Singapore is among India's largest trade and investment partners in ASEAN. Now, ASEAN you have to cover. ASEAN is a IR topic. Already we have covered it. Yes or no? 10 nations are there. India is not a part. So everything related to ASEAN because Singapore is a part of ASEAN. FDI. Every year Singapore happens to be as a top, either it is rank 1 or rank 2, always Singapore मतलब top source nation in terms of FDI वहाँ से बहुत ज़्यादा आता है, either Singapore or USA. So every year before exam you have to check the top 5 FDI which comes in FDI, you know ना, foreign direct investment. Okay, so 21-22 में Singapore again emerged as the top nation. So all these points you can write in economic relations. Okay, now comes the important part. India and Singapore are a part of various international organizations. एक है G20. G20 we have covered. G20 is in news also. Singapore भी है, India भी है. Commonwealth, IORA, that is Indian Ocean Rim Association. East Asia Summit we have covered yesterday or day before yesterday in our current affair related to Nalanda, if you remember. East Asia Summit was the summit from where the revival of Nalanda was initiated. Revival of Nalanda University. Now East Asia Summit. Now this is a summit. It means it's not an organization. Summit मतलब they'll come and they'll sit and they'll talk, they'll meet. तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में होता है? आई ऑलरेडी टोल्ड इट 3 to 4 times. इट हैपेंस अंडर आसियान 2005 से। आसियान पहले से है, 2005 से इसी समिट हो रहा है। 2015 का क्वेश्चन आया था, आसियान में कौन है? 10 मेंबर्स है, साउथ एशियन कंट्रीज, कैम्बोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, ब्रूनी, लाओस, सिंगापुर, वियतनाम, ये सब है, ठीक है। ऑल 10 तो ईस्ट एशिया समिट में कौन कौन के? 10 आसियान प्लस इंडिया ओनली, प्लस इंडिया, प्लस चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, रशिया। रशिया भी आते हैं ईस्ट एशिया समिट में। दिस वाज द क्वेश्चन 2015। These are all IR questions, ठीक है। So East Asia Summit यहीं पे कवर हो गया। This much is important for East Asia Summit. And this was the one where revival of Nalanda they started in 2009. यहीं पे the discussion or the idea आया 2008 या 9 पे। Okay, G20 you can cover. Commonwealth we will cover in some other class. Commonwealth very important. Commonwealth very important. Okay, IR topic. Indian Ocean Rim Association will cover now. East Asia Summit covered. Indian Ocean Naval Symposium will cover in another class. It will be news. ठीक है? All these organizations, India and Singapore are part. Here,
Don't confuse with Indian Ocean Rim Association and Indian Ocean Naval Symposium. Don't confuse, people get confused. So today we will cover this. In another current affair class we will cover this. ठीक है? You can cover on your own also. I'm giving you the topic. ठीक है? So the last topic is Indian Ocean. Some naval cooperation is there. Defense organization is also there. Smart cities is also there. You can just go through it. Now coming to Indian Ocean Rim Association. See, ये Indian Ocean है. ये Indian Ocean है या नहीं? आज पता चला क्या? पता है? मतलब क्या? मतलब डुबकी लगा के आए हो क्या वहाँ पे? These are the countries. These are the countries. India है. तो these are the countries जो इस Indian Ocean पे है mostly. ऑस्ट्रेलिया भी है. देखो यहाँ all this there are around 23 member nations. These are the countries you have to just important countries. अफ्रीका के इस साइड में है. मोजाम्बिक है, ये सब कंट्रीज है. ठीक है? श्रीलंका है. नाउ ईस्ट एशिया इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन 23 मेंबर्स, 9 डायलॉग पार्टनर्स. करता क्या है, काम क्या है? सी इंटर गवर्नमेंटल. आई टोल्ड यू इंटर गवर्नमेंटल मीन्स कंट्रीज आर मेंबर्स. ओनली कंट्रीज विल बी मेंबर्स. इंटर गवर्नमेंटल. स्ट्रेंथनिंग द रीजनल कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इन इंडियन ओशन. विद इन इंडियन ओशन में रीजनल कोऑपरेट करेंगे एवरीवन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे. ठीक है? किसी का अगर कुछ काम नहीं है तो वो क्या करते हैं, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं. ओके. लॉन्च हुआ था मॉरिशियस में. मॉरिशियस पता है ना? पता है ना मॉरिशियस? कौन जाते हैं मॉरिशियस? बॉलीवुड वाले जाते हैं ना वहाँ पे. हाँ, जाके इंस्टा पे फोटो. एनीवन वेंट टू मॉरिशियस? नेवर. ड्रीम्स में? ड्रीम्स में तो जाते हो, तुम तो डेली जाते हो. लेकिन सुबह आ जाते हो इधर क्लास करने. रहते मॉरिशियस में हो, क्लास करते हो अशोकनगर में. ओके. 1995 हुआ था. फिर फॉर्मली लॉन्च हुआ 1997. ट्रीटी का नाम है चार्टर ऑफ द इंडियन ओशन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. ये ट्रीटी का नाम है, सेम नाम है. लेकिन द आइडिया of IORA first surfaced during the late South African president Nelson Mandela आए थे to India 1995 में. He told at that point of time the natural urge of the factors of history and geography should broaden itself to include the concept of Indian Ocean Rim only for socio-economic cooperation. So Nelson Mandela ने आइडिया दिया था पहले. क्लियर? ओके. इनका जो हाईएस्ट अथॉरिटी है उसका नाम है COM, दैट इज काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स. सारे कंट्रीज का फॉरेन मिनिस्टर्स आके बैठते हैं एंड दे टेक द डिसीजन ऑफ IORA. इट इज कॉल्ड COM. जैसे नॉर्मली कॉप होता है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ अदर ऑफ UNFCCC, UNCBD. इनका है COM, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स. क्लियर? These are the objectives. ये लिख मत दो, ये सेम है. These are all normal things. Don't write. Fisheries disaster. Blue economy means ocean. Women's economic empowerment. Everything they will take care. ठीक है? बस लिख देते हैं सब. Now important part. They will ask you in question. Indian Ocean Dialogue किसका है? Now how you will confused? See, simply they will ask Indian Ocean Dialogue IOD belongs to or associated to whom? Option is the option Indian Ocean Dialogue. एक होगा Indian Ocean Rim Association, एक होगा Indian Ocean Naval Symposium, एक होगा Indian ओशन कमीशन, इट इज IOC. ठीक है? नाउ एवरीथिंग हैज इंडियन ओशन. आंसर इज IOD बिलोंग्स टू
IORA. Now your topic today, another naval symposium will cover some other day. Your topic is Indian Ocean Commission. क्या है? 1982 विक्टोरिया एग्रीमेंट से बना था. विक्टोरिया एग्रीमेंट, ठीक है. नाउ इंडियन ओशन कमीशन, दिस वन, इज इंडिया ए पार्ट? इंडिया इज नॉट ए पार्ट. मॉरिशियस, सेशेल्स, जो कंट्रीज है ना वहाँ पे, जो रियूनियन आइलैंड्स, छोटे मोटे 5 आइलैंड्स जो है वहाँ पे, कहाँ पे? इंडियन ओशन में. दोज कंट्रीज का एक ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड इंडियन ओशन कमीशन. एंड रिमेंबर विक्टोरिया एग्रीमेंट 1982 से हुआ था. इंडिया इज नॉट अ पार्ट. सो व्हेन अ क्वेश्चन कम्स अबाउट इंडियन ओशन, सो इन अ वे फॉरवर्ड ऑल दिस पॉइंट्स कैन बी रिटन और नॉट. इंडियन ओशन को और अच्छा बनाने के लिए, लाइक मोर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ऑल दिस थिंग्स यू कैन राइट इन योर मेंस. इंडियन ओशन में 3 ऑर्गेनाइजेशन का नाम रेडीमेड आ गया. नावल सिंपोजियम, रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशन कमीशन. ठीक है. ओके, नाउ ये है क्या? व्हाट इज IOD? It is a standalone track 1.5 debate that was started at the 13th Council of Ministers Conference 2013 से 2013 से एक. Now what is track? I'll tell you what is track. It brings together academics, decision makers from the member states to engage discussions. Academics लोग आएंगे, member states से different people आएंगे, decision maker, and they'll talk. Kind of a diplomatic thing. Diplomacy, it's a track dialogue होता है ना. Dialogues, 2 countries जब मिल के बात करते हैं, that is we call as track diplomacy. We call it, there are types of track, I'll tell you. Track diplomacy. Now track 1.5 debate में ये होता है. Academics आ जाते हैं, decision maker आते हैं, they'll start discussing on the topic, any topic, they start discussing. Academics आएंगे. Now the topic comes, related topic, what is track diplomacy? ठीक है. All these things are prelims and mains enrichment. In a way forward, you should always write a track diplomacy thing. To develop more good diplomacy, you should use these kind of words. Okay, we'll come to track diplomacy first. Different levels of diplomacy. Track 1 diplomacy, track 2 diplomacy, track 3 diplomacy, and multi-track diplomacy. Okay, see. Track 1 diplomacy में क्या होता है? Official discussions involving high-level political and military leaders. दोनों country के high-level political leaders, military leaders, they will come and they will start talking. Anything relating ceasefire के बारे में, peace talks के बारे में, treaties, anything. Discuss issues. Head of the states meet, have high tea, joint statements release करेंगे. जो होता है ना, India and France has दोनों political leader meet की और joint statement. It is a part of track 1 diplomacy. When 2 country का political head meet करके joint press conference देते हैं, it becomes a part of track 1 diplomacy. ठीक है? What is track 2 diplomacy? Unofficial dialogue. Unofficial dialogue होता है and problem solving activities aimed at building relationships and encouraging new thinking that can inform the official process. Since it is unofficial, काफ़ी unofficial है track 2. You can expect to see influential academic, religious, NGO leaders and other civil society actors who can interact more freely than high-ranking officials. Think of Baba Ramdev and Amir Khan trying to chit-chat with officials of Pakistan Foreign Ministry, scheduling them into buying an idea. मतलब कहीं ना कहीं तो just you have to use the word unofficial talks. तो official statement नहीं आएगा. ठीक है? Unofficial talks. वो track 2 diplomacy. Now comes the track 1.5, which is nothing but we studied now. Example is Indian Ocean Dialogue of IORA. 1.5 में क्या होता है? Official and non-official actors together आएंगे to solve a problem or to talk. Official 1.5 में official plus unofficial. Official मतलब from the government. Unofficial मतलब can be anything. Private person, anybody can come. They'll talk. ठीक है?
So all these things in mains you can use it, right? Way forward में अगर दो कंट्री का रिलेशन का क्वेश्चन आया है, you can write स्टार्टिंग है ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी करो तो अच्छा रहेगा, ऐसा करके यू कैन राइट. ट्रैक 3 क्या होता है? पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी. पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी, यहां पे गवर्नमेंट का रोल नहीं है. ट्रैक 3 में इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट ग्रुप्स आ जाते हैं. इंडिविजुअल एंड प्राइवेट ग्रुप्स. मल्टी ट्रैक में सब आते हैं. Several tracks simultaneously, including official, unofficial, citizen, scientific exchange, international business negotiation, international cultural, athletic sports, सब multi track में सब आ जाता है. Government, everyone will come and they'll start doing something related to that particular category. It may be a sports or movies or anything, culture. ठीक है? So these are the different levels of diplomacy. This is a static IR. Static IR topic. So here you covered it. Fine. Okay, so IORA का लास्ट पार्ट ये है. नाउ द थिंग इज IORA 1995 से हुआ था. नाउ सिमिलरली यू हैव टू कवर द रिसेंट कहाँ पे हुआ है, चेयरमैन कौन है. एवरी ईयर हुआ है. देखो 2021 में बांग्लादेश है. सो 2022 में अभी चल रहा है, अभी न्यूज़ में आएगा. somebody else will take the chair. अब देखो हाउ टू कवर. रिसेंट क्या है, इंडिया ने चेयरमैनशिप किया है या नहीं. इंडिया ने एक बार की, 2 बार किया है. 2011, 2012 कंजुकेटिवली इंडिया वाज द चेयरमैन. दैट्स इट. रिमेंबर दिस टू. नो नीड टू रिमेंबर 11, 12. एटलीस्ट यस इंडिया हुआ है और कंजिक्यूटिवली हुआ है. ठीक है, डन. इसको बंद करो.